A jet ski is a type of boat that carries one or two people and travels at high speed on water. Figure 1.1 shows a student riding a jet ski. Direction of movement is ski left. High speed jet of water is forced backwards out of the back of the jet ski by a pump inside the jet ski. The pump increases the momentum of water that is forced backwards out of the back of the jet ski. Complete the word equation to show the relationship between resultant force on an object and the change in moment. The resultant force होती है change in momentum बेटा in November 24 2 है change in momentum upon time taken है ठीक है ये हमने नोट्स में लिखा हुआ है कि रिजल्टेंट फोर्स डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है In 2 seconds, the pump increases the backward speed of 180 kilogram of water by 30 meters per second. Calculate the backwards force exerted on the water. की स्पीड पहले कितनी थी जितनी भी थी उससे 30 मीटर्स पर सेकंड जो है ना वो उसने इंक्रीज किया तो F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T जिसको हम लिखते हैं M डेल्टा V अपॉन डेल्टा T कितना मास है इसका चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए मास को मल्टीप्लाई करते हैं चेंज इन वेलोसिटी से वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है 30 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितने टाइम पे पता है क्या आंसर आया 2700 आ गया दिस इज फोर्स आप लोगों की बुक का है कब दो तुम्हारी बुक का है मैंने मैसेज किया है ग्रुप जाते हुए हो गया फिर next the using Newton's third law of motion explain why there is a forward force on the jet ski backward force है या नहीं है कौन अप्लाई कर रहा है जेट्स की अप्लाई कर रही है पानी पर किस तरफ पीछे तो फॉरवर्ड फोर्स कौन सी होगी जो पानी अप्लाई करेगा किसके ऊपर जेट्स की के ऊपर क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि force applied by object A on B, force applied by object B on A will be equal in magnitude, opposite in direction.
जेट स्की ने वाटर पे फोर्स अप्लाई की है बैकवर्ड्स, तो वाटर ने जेट स्की पे फोर्स अप्लाई की है forwards. The student has a mass of 70 kg and the jet ski has a mass of 280 kg. Use your answer from A part 2 to determine the acceleration of the student and the jet ski when no resistive forces are acting. So, acceleration F होता है ma के बराबर, तो ये हो जाएगा F अपॉन m. कितनी फोर्स है रिजल्टेंट? 2700. पीछे पिछले वाले पार्ट में हम फोर्स निकाल चुके हैं 2700 डिवाइडेड बाय मास. स्टूडेंट और जेट स्की दोनों को 2700 न्यूटन की फोर्स मिल रही है, तो जो हम मास रखेंगे वो 280 प्लस 70, दोनों टोटल में जो मास है. क्या है आंसर? 7.7 meters per second square. The jet ski reaches a speed of 20 meters per second. Calculate the total kinetic energy of the student jet ski. तो बेटा kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है? मास कितना है इसका? मास है 280 प्लस 70 मतलब 350. और कितनी स्पीड से मूव कर रहे थे? 20 का स्क्वायर. क्या आंसर है? क्या आंसर आ रहा है? 70,000 जूल्स. कैलकुलेशन करते जा रहे हैं ना साथ साथ. काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है जूल. Glass beaker of mass m is at rest on a horizontal surface. The base of the beaker is a circle with radius r. The beaker exerts a pressure on the horizontal surface. Determine an expression for the pressure in terms of gravitational field strength G, M and R. प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स हो गया वेट विच इज mg. एरिया, सर्किल का एरिया का पता है? आई आर स्क्वायर. तो mg अपॉन पाई आर स्क्वायर ही हमारे पास एक्सप्रेशन बना. Figure 2.1 shows the beaker being filled with a liquid from container X. Initially, the beaker is empty. At time 0, the tap is opened and liquid from container X flows slowly into the beaker at a constant rate. At time t equals to capital T, the liquid stops going into the water. Sketch on figure 2.2 to show how the pressure exerted on the horizontal surface varies between 0 and t equals to 2t. बेटा जब इसमें पानी नहीं था तो क्या इस पर प्रेशर लग रहा था? लग रहा था, और वो प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इनिशियली जब पानी नहीं भी था तो भी प्रेशर होगा या नहीं होगा? होगा. तो ये ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होगा. जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा प्रेशर भी बढ़ता जाएगा.
T से लेकर 2T तक क्या बना है? Stops flowing into the water. तो 0 से लेकर T तक कैसा बनेगा लाइन? उसके बाद क्योंकि फिल कहाँ तक हुआ है सर? कैपिटल टी तक फिल हुआ है, उसके बाद फिल ही नहीं हुआ तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, फिर चेंज नहीं होगा। ग्राफ कभी भी आप लोग पेन से नहीं बनाया करें, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है आपके पास नहीं। आपके पास तो पेपर है तो यूज पेन। उसी में मैंने भी सोचा कि एक के नहीं हो। Figure 3.1 shows a laboratory freezer. The door is closed and the freezer is switched on. A cold liquid is pumped through the copper pipe at the top of the freezer. The temperature of the air next to the copper pipe decreases quickly. Temperature क्यों कम होगा? Copper pipe क्या है? The door is closed and the freezer is switched on. तो copper pipe क्या हो जाएगा? Cool down हो जाएगा। तो उसके करीब जो air है उसका temperature क्या होगा? Explain how the temperature of the rest of the air in the freezer decreases. जैसे जैसे वो जो कॉपर पाइप के सराउंडिंग एयर है उसका टेम्परेचर कम होगा तो वो क्या हो जाएगी? टेंसर हो जाएगी और वो नीचे सिंक करेगी, और नीचे की जो वार्म एयर है वो राइज करेगी, फिर वो वहां जाकर लेस डेंसर हो जाएगी, मतलब ठंडी हो जाएगी, और ये प्रोसेस चलता है। तो क्या लिखेंगे? द एयर इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? कन्वेक्शन करंट कहते हैं। डन। कन्वेक्शन करंट। The thick insulation shown in figure 3.1 is made from plastic material. The plastic material in the insulation is a poor thermal conductor. Describe how thermal energy is transferred through a plastic material.
The plastic material also contains a large number of small air bubbles. Explain how the air bubbles reduce the transfer of thermal energy through the insulation. एयर मॉलिक्यूल्स क्या है? एयर में पार्टिकल टू पार्टिकल सेपरेशन बहुत ज्यादा है, उसमें कोलिजन्स नहीं होती, तो कंडक्शन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती, और एयर जो है वो हीट ट्रांसफर को उतना अच्छा नहीं करती. और जो एयर ट्रैप हुई हुई है, लिखा हुआ है ना, द प्लास्टिक मटेरियल आल्सो कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एयर बबल्स. तो प्लास्टिक मटेरियल के अंदर पैकेट बने हुए एयर बबल्स के, तो वो मूव तो नहीं कर रहे, ट्रैप्ड है वो. जब मूव ही नहीं कर रहे तो फिर ट्रांसफर नहीं हो सकता. ये एयर ट्रैप्ड है, मूव नहीं कर रही. अगर मूव कर रही होगी तो कन्वेक्शन के थ्रू ही ट्रांसफर हो जाता, लेकिन कन्वेक्शन भी यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि एयर मूव नहीं कर सकती, ट्रैप्ड एयर है. पैकेट्स बने हुए एयर पैकेट्स, और वो मूव नहीं कर रहे, तो ना कंडक्शन हो रही है और ना कन्वेक्शन हो रही है. चलिए यहाँ तक. Figure 4.1 shows a large syringe that is sealed at the nozzle by bags. There is a piston inside the syringe. The pressure of the air inside the syringe is equal to atmospheric pressure, which is 1 exponent 5 pascals. The volume of air inside the syringe is 1.2 exponent minus 4 meter cube. The area of the end of the piston that is in contact with the air is 3.5 exponent minus 3 meter square. The friction between the piston and syringe is negligible. Calculate the force on the piston due to the pressure of the air inside the syringe. तो बेटा एरिया दिया हुआ है और प्रेशर भी दिया हुआ है, और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया.
प्रेशर कितना दिया हुआ है 1 एक्सपोनेंट 5 और एरिया कितना था 3.5 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई करें 350 या 50 350 न्यूटन आंसर जी बेटा सर ये प्रश्न तो एरिया दिया हुआ है क्या आगे ये एक्सक्लूड किया गया है बेटा ये एम स्क्वायर जो है ये यूनिट है एरिया का और एम क्यूब वॉल्यूम का यूनिट द फोर्स ऑन द पिस्टन इज टुवर्ड्स राइट कहां पर लग रही है फोर्स पिस्टन पर लग रही है फोर्स राइट पर लेकिन बाहर से कौन प्रेशर लगा एटमॉस्फेयर और दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर है रिजल्टेंट फोर्स नहीं है इसलिए पिस्टन मूव नहीं करेगा और मैं वो वाला भी बैलेंस वाला मुश्किल है बेस बेस क्या आपका वॉल्यूम जो हो गया है तो अब आपका फिर पार्टिकल फ्लोर हो गए थे मैंने आपका अगले आंसर बता दिया है It is now pulled to the right by an additional force. The temperature of the air in the syringe does not change. Temperature change नहीं होता तो speed change नहीं होगी. Explain in terms of molecule, in terms of particles, why the pressure of the air in the syringe decreases. अगर piston को right में pull कर लेते हैं तो ये जो वॉल्यूम है गैस का ये बढ़ जाए और वॉल्यूम बढ़ने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी
Calculate the pressure of the air inside the syringe when the volume of the air is 1.5 exponent minus 4 meter cube. बेटा ऊपर लिखा हुआ है कि टेम्परेचर डज नॉट चेंज, तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो स्पीड चेंज नहीं होगी, और अगर स्पीड से नहीं चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज। तो हम इसमें बात ही नहीं कर रहे कि स्पीड या काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज आएगा। ठीक है, अगर वो लिखते हैं कि टेम्परेचर कम हो गया है या बढ़ गया है तो फिर आप बात करते हैं स्पीड या काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, प्रेशर का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन होता है? तो वी कैन से P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। पहले प्रेशर कितना था और उस वक्त वॉल्यूम कितना था? और अब वॉल्यूम कितना है? इनटू हमें निकालना है P2। तो बताएं कि P2 की वैल्यू कितनी आ रही? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। हाँ, 8 एक्सपोनेंट माइनस 4 पास्कल्स। -4 है +4 है? +4। अगर -4 होता तो प्रेशर आप क्या कह रहे हो कि कम हो गया प्रेशर, जबकि मतलब इतना कम नहीं हो सकता, एक्सपोनेंट -4 बहुत कम। वन इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 1.5, 8 एक्सपोनेंट 4। Some glass lenses are converging lenses and other are diverging lenses. Draw the cross section of a diverging lens. बेटा diverging lens कैसा होता है? Figure 5.1 shows the cross section of a converging lens. The principal axis and the two principal focuses
F1 and F2 on a full scale grid is shown. ये आपको उन्होंने बताया हुआ है कि 5 छोटे बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना है. A student places an object of height 2.1 centimeter at a distance of 3 centimeter from the center of the lens using figure 5.1 determine the focal length. तो बेटा फोकल लेंथ को देख रहे हैं आप लोग के कितना दूर है, काउंट करें जरा. कितने बॉक्स हैं? एक, और ये 1.8 हो गया, 1.8. 5 छोटे बॉक्स 1 के बराबर, 5 तो वो हो गए, और फिर 4 छोटे बॉक्स, एक बॉक्स 0.2 को रिप्रेजेंट कर. तो ये कितना हो गया? 1.8. On figure 5.1, draw a vertical arrow of height 2.1 centimeter that is 3 centimeter from the center of the lens and label the arrow O. The arrow is the object. कितनी हाइट ऑब्जेक्ट की और कितना दूर है वो? 3 सेंटीमीटर दूर, 2 सेंटीमीटर हाइट का आपने 2.1 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट बना. और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लिखना है O. सही है? कितना दूर बताना था? 3 सेंटीमीटर दूर, 2.1. सही है? 2.1 का मतलब है 2.2 जहां पर खत्म हो रहा है उससे थोड़ा सा बिल्कुल कम होगा, मतलब बीच में बने. 2 से ज्यादा और 2. टू 2.1 सेंटीमीटर हाइट और O. सही है? यहां तक कितनी हाइट का बनाना है? 2.1 सेंटीमीटर हाइट का बनाना. सबने बना लिया? ये 5 छोटे बॉक्स 1 सेंटीमीटर, फिर 5 छोटे बॉक्स 1 और सेंटीमीटर, और फिर ये आधा बॉक्स आया. ठीक है? हाँ उसका भी याद. ठीक है, क्योंकि वो जो पूरा बॉक्स है छोटा वाला वो 0.2 के बराबर, हमने 2.1 बना, 2.2 नहीं बना. ठीक है, शार्प पेंसिल से बनाए. On figure 5.1, draw 2 rays from the tip of the object arrow to find the tip of the image. Draw another arrow to show the image. अब हमें पता है कि रूल हमने अप्लाई करने. कन्वर्जिंग लेंस के रूल्स क्या थे? जो लाइट रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगा. तो रूल नंबर 1 अप्लाई कर रहे हैं. Light ray passing parallel will pass through focus. रूल नंबर 2 याद है किसी को? जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी. ये है आपके पास रूल 2. 2 लाइट रेस बना दी हमने. अब इन दोनों के जहां पर ये कोइंसाइड कर रहे हैं वहां पर क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है. और इमेज कैसा बनेगा? इन्वर्टेड इमेज बनेगी. उन्होंने बोला है कि इमेज को कुछ लिखो. अगर कहते हैं कि आई लिखो तो हमें लिखना होता, उन्होंने नहीं कहा तो इसलिए हमने नहीं. यहाँ तक हो गया. अब आप मुझे बताइए कि इमेज कितनी हाइट का है? 1, 2 और 3 सेंटीमीटर हाइट का जो है वो इमेज. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज
अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा हाइट ऑफ इमेज कितनी है डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट थी 2.1, क्या है 1.428 है, तो हम लिखेंगे 1.4। और मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज का रेशो होता है, दोनों हाइट है तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे, इसका कोई यूनिट नहीं बनेगा। क्या ये इमेज रियल है या वर्चुअल है? रियल है क्योंकि ये द इमेज इज रियल बेटा उन्होंने इन्वर्टेड या अपराइट का डिफरेंस नहीं पूछा, उन्होंने रियल और वर्चुअल पूछा। हाँ नहीं नहीं, आप बताना है कि क्यों रियल है। द इमेज इज रियल बिकॉज इट कैन बी shown on the screen. Yeah, it can be captured on screen पहले। वर्चुअल स्क्रीन पर कैप्चर नहीं होते हैं, वर्चुअल प्रिंट इसलिए नहीं लिया जा सकता। वर्चुअल स्क्रीन पर इमेज जो कैप्चर होते हैं, जैसे प्रोजेक्टर का इमेज स्क्रीन पे आ रहा है, ये रियल है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। फिगर 6.1 shows a circuit symbol for a relay and two labeled terminals. By referring to figure 6.1, explain the effect of a current passing from A to B. अगर करंट पास कर रहा है A to B तो ये जो कॉइल है क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। और जैसे ये मैग्नेटाइज होगा तो जो रिले स्विच है उसको अट्रैक्ट करके क्लोज कर देगा, जिसकी वजह से रिले स्विच करंट को अलाउ करेगा, विच मींस कि जो राइट साइड वाला सर्किट है वो काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो एज द करंट सर बाहर वाटरफॉल शुरू हुई थी। और सही कर रहा हूँ। सर पास पेपर कौन सा? बेटा ये नवंबर 2024 2 The coil is magnetized and it attracts the relay switch. कौन सा पेपर है? प्लीज November 2024 2 पेज नंबर क्या होगा? पैसे नहीं मिल रहा तो क्या करूं? 393 ये पहले पूछ लेते तुम अगर तुमने। अरे अच्छे क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। जी बेटा सर मेरा आपसे कंसर्न है। सर मुझे ये लगता है कि सर मैं आईजीसीएसई के पास पेपर नहीं करूंगा, ये करूंगा तो मेरा पेपर। अच्छा, जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें हम आईजीसीएसई वाला पेपर करेंगे। सही, सबको वही करना है। ठीक है, और मुझे तुमने रिमाइंड करा देना कल की क्लास में कर, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि उसी तरह से या वही चीज पूछी जा रही है। तो सेम होता है ना? सेम होता है, सिर्फ मार्किंग क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था अलग होता है। फॉर्मूला तो तुमने खुद भी देखा है कि जो चीज यहाँ 2 मार्क की है तुम्हारे पास वो 3 या 4 मार्क की। इट मीन्स कि तुम कंपैरेटिवली मुश्किल पेपर कर रहे हो नहीं इजी। ये वाला। तो जब तुम अपना पेपर दोगे तो तुम्हें और आसान ही लगेगा, मुश्किल में लगेगा। ये सच बात है, मैंने अपना मौत भी है ना मक्खन लगा था, और आपके साथ जब करा तो दिमाग में हिलता है क्या होता है। सही, ठीक है, कल लेकिन हम आपका वाला पेपर करेंगे। हाँ सही।
Figure 6.2 shows two circuits linked by a relay. The heater transfers energy at a rate of 40 watts when it is connected to a 12-volt supply. Switch S is closed. The variable resistor is adjusted so that its resistance R increases from 0. Figure 6.3 shows how the power transferred in the 40-watt heater varies as R increases from 0. The graph shows a sharp decrease when the resistance R reaches RH. Explain the shape of the graph in figure 6.3. क्यों हो रहा है बेटा ये? पावर कितनी थी? 40। RH तक 40 है, फिर एकदम से पावर कितनी होगी? क्यों हुआ ऐसा? कितनी पावर है इसकी? ये 40 वॉट पावर है हीटर और 12 वॉट सप्लाई। जैसे ही आपके पास ठीक है सर, मतलब 40 वॉट पावर हीटर किया। बेटा ये लिखा हुआ है आर को जैसे ही हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, आर एच की वैल्यू से ज्यादा जैसे ही आर बढ़ेगा तो इससे करंट क्या हो जाएगा? और करंट कम होने से मैग्नेट क्या हो जाएगा? और मैग्नेट वीक होगा तो जो दूसरा वाला सर्किट है वो ऑफ हो जाएगा और फिर हीटर काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो सर इसको डिसेंडिंग में बना देंगे 0 तक। नहीं, उन्होंने एक्सप्लेन करने को कहा। तो हम लिखेंगे कि इनिशियली increases अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी तो वो जो स्विच पहले क्लोज था वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। पहले क्लोज था और हीटर ऑफ हो जाएगा। पहले हीटर काम कर रहा था, अब हीटर काम नहीं करेगा। बाहर एक आंटी बड़ा गुस्सा हो रही थी मुझसे इस बार। बाहर एक आंटी बड़ा गुस्सा हो रही थी।
Next question, the 40 watt heater connected to the 12 volt supply is switched on, energy transferred and heater is in 2 minutes निकालनी है हमने. एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम. पावर कितनी गिवन है हमें 40 और टाइम कितना गिवन है 2 मिनट्स है, लेकिन सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट टाइम का सेकंड होता है. क्या आंसर आया 4800 जूल्स. रेजिस्टेंस निकालनी आर का फॉर्मूला होता है पावर वाले से रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. आर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी. 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40 कर दें. पहले पी क्या है पावर 40 मल्टीप्लाई बाय 2. अच्छा 2 मिनट पॉइंट मिनट्स को हम सेकंड में नहीं कन्वर्ट करेंगे. कर दिया अच्छा 60 से मल्टीप्लाई करके. अगर आप लोग 2 मिनट्स to सेकंड. Sketch a graph to show how the voltage of the supply varies in a time of 0.05 seconds. फ्रीक्वेंसी दी है तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं आप. टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. सो 1 अपॉन 50 करें. जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो ये आ गया आपके पास टाइम पीरियड. 0.02 में आपने एक वेव कंप्लीट कर ली और मैक्सिमम वोल्टेज दिया हुआ कितना है 300 दिया हुआ है. तो जो आपकी सप्लाई वोल्टेज की पीक बनेगी वो 300 पे बनेगी. सही. और एक पूरी वेव खत्म होनी है कितने पर 0.02 पे खत्म होनी. ठीक है. ये एक वेव है और उन्होंने कहाँ तक बोला है 0.05 तक बोला है. तो ये पूरी वेव बनेगी. ठीक है. ऑल्टरनेटिंग करंट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है 300 उसकी पीक है और फ्रीक्वेंसी से हमें पता चल गया है कि एक वेव 0.02 सेकंड्स में कंप्लीट होनी चाहिए. क्लियर हो गया. नेक्स्ट है figure 7.2 shows the mains power supply connected to the primary coil of a transformer. The primary coil consists of 750 turns. The core of the transformer is made from iron. Explain why iron is a suitable material. Iron एक temporary magnetic material है, ज्यादा हीट अप नहीं होता और एफिशिएंसी इंक्रीज करता है. इसके अलावा आयरन की ये प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से हमारे पास आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है. सर सॉफ्ट नहीं लिख सकते. सॉफ्ट नहीं कोई बात नहीं ना. सॉफ्ट मतलब टेम्पररी लिखो. आयरन इज अ आपके नोट्स में पढ़ा टेम्पररी magnetic material and it increases magnetic field strength. एक पॉइंट आपको पता है कि वो बात क्या किस बात पे मिलेगा. पूछा जाता है सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ कहाँ से आया तो हम क्या कहेंगे वेरी गुड. प्राइमरी कॉइल क्या है प्राइमरी कॉइल ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई है प्राइमरी कॉइल. सर तो सेकंड की कॉइल की क्या मतलब है डीसी होता है एसी ही आएगा. जब आप स्टेप डाउन दोनों में ना अल्टरनेटिव करंट ट्रांसफर होता है ना
ऑल्टरनेटिंग करंट की ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है जब इस सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज। There are 60 turns on the secondary coil. Calculate the maximum value of the voltage across the secondary coil. Primary coil के कितने turns थे? 750 और primary coil में voltage कितना था? मेन सप्लाई का वोल्टेज कितना दिया था उन्होंने? 300 दिया, ठीक है। और प्राइमरी कॉइल मतलब 300 सप्लाई यहाँ पर है और इसका वोल्टेज है हमारे पास 700, इसका टर्न्स है 750, ठीक है। सर दूसरे कॉइल सेकेंडरी कॉइल की टर्न्स हमें दिए हुए हैं 60। हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला था? सर T1 NP अपॉन NS is equal to VP upon PS. सही। number of turns primary, number of turns secondary, voltage primary। तो अब हमें वोल्टेज निकालना है किसका? सेकेंडरी का। तो VS को सब्जेक्ट बनाने ये हो जाएगा VP इंटू NS अपॉन N। सही है। तो VS इक्वल्स टू VP कितना था प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय सेकेंडरी कॉइल की टर्न्स 60 डिवाइडेड बाय, क्या आंसर है? सर प्लीज सर कितना सर ये आपने इसको सब्जेक्ट कैसे बनाया है? सब्जेक्ट बनाने के लिए VS को इधर ले गए, NS डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई हो गया, तो NP नीचे आ गया। 24 ओके। सर अब अगर ये उसमें आता नहीं 3 मार्क्स का होता सर। डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा किसे कहते हैं? इट हैज 2 protons and 2 न्यूट्रॉन्स। अल्फा में क्या होता है? 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स। स्टेट द नेम ऑफ द पार्टिकल दैट इज आइडेंटिकल इन कॉम्पोजिशन टू अल्फा पार्टिकल। हीलियम एटम अल्फा पार्टिकल के, या हीलियम आप न्यूक्लियस कह सकते हैं। हीलियम न्यूक्लियस क्योंकि एटम में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियस।
The alpha particle decay of thorium-230 produces an isotope of radium. The number of neutrons in a neutral atom of this isotope of radium. रेडियम में मुझे बताएं अगर हम थोरियम से शुरू कर रहे हैं, थोरियम 230 90 ऊपर गिवन है, सही है। इसने एमिट किया क्या? अल्फा, अल्फा होता है 42। तो जो नया न्यूक्लियस बन रहा है उसका नाम क्या है, उन्होंने बताया रेडियम। अब रेडियम में एटॉमिक मास कितना होगा? 230 माइनस 4 कितना होता है? और 90 माइनस 2। अब हमें क्या बताने? न्यूट्रॉन्स बताने। तो 226 माइनस 88 करें, 138। 226 में से 88 को माइनस करेंगे तो आई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम ऑफ दिस आइसोटोप। बेटा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं तो 88 ही होंगे। सर अल्फा पार्टिकल्स ये अल्फा पार्टिकल है एक, तो सर अल्फा पार्टिकल में ऊपर 4 माइनस होते हैं, नीचे 2। यस, और अल्फा होता है 4 2, में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, बीटा में प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं तो वही ना और न्यूट्रॉन्स कम। इलेक्ट्रॉन का फिर एक और चीज भी आती है एंड गैमा। वो कोर्स में नहीं है बेटा, आपके ओ लेवल्स में नहीं। न्यूट्रिनोज एंड एंटी न्यूट्रिनोज आर नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ ए लेवल्स, ये ए लेवल्स में। Half life of thorium-230 is 75,000 years. A radioactive sample contains 7.2 exponent 16 thorium-230 atoms. Determine the time it takes for the number of thorium atoms to decrease to 9 exponent 15. बेटा अगर हम 7.2 exponent 16 से शुरू करें तो एक हाफ लाइफ के बाद कितने हो जाएंगे? डिवाइड करें जरा इसको 2 से। 3.6 एक्सपोनेंट 16 हो जाएंगे। दूसरी हाफ लाइफ के बाद 1.8 एक्सपोनेंट 16 और तीसरी हाफ लाइफ के बाद ही हो जाएंगे 9 एक्सपोनेंट 15। तो कितनी हाफ लाइफ गुजर गई? 1 2 3। एक हाफ लाइफ कितने के बराबर थी? 70। When it decays, thorium-230 also emits gamma radiation. Figure 8.1 shows a narrow beam of gamma radiation passing through an electric field. Sketch the path of the radiation, gamma radiation in the electric field. बेटा gamma पे चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर कोई फोर्स लगेगी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ही चला जाएगा। तो आप इसको स्ट्रेट ही कंटिन्यू कर दें बिकॉज gamma इज न्यूट्रल, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। पार्ट 2 में कौन है बेटा? बीम ऑफ गैमा रेडिएशन। दोबारा से गैमा। अब क्या होगा? ये भी स्ट्रेट चली जाएगी। क्यों स्ट्रेट चली जाएगी? क्योंकि गैमा न्यूट्रल होती है तो ना उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फोर्स लगेगी और ना ही मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स लगेगी, तो ये इसमें भी स्ट्रेट ही चली जाएगी। अर्थ हैज अ रेडियस of 6.4 exponent 6 meter and rotates on its axis once in every 24 hours. Figure 9.1 shows that as Earth rotates, objects on the surface of the Earth move in a circular path around the axis of rotation. Calculate the speed of an object at the equator as it moves in a circular path around the axis of rotation. तो speed का formula क्या था? 2 pi r upon t पढ़ा था हमने orbital speed का formula. V is equal to 2 pi r upon t. So 2 pi r कितना गिवन है? 6.4 exponent 6 divided by टाइम टेकन कितना होता है? 24 घंटे लिखा हुआ है। सो 24 आवर को सेकंड में कैसे करते हैं? हर आवर में 60 मिनट और 60 सेकंड्स होते हैं। बताएं क्या आया स्पीड?
जो नीचे आपने स्पीड की सीट पे कन्वर्ट किया 24 आवर को आवर को मिनट, मिनट को सेकंड। अच्छा तो दिनों को भी तो फिर करें बेटा 24 आवर्स था ना, दिन से नहीं शुरू हो रहा, आवर से शुरू हो रहा। उसका सिर्फ लिखा है कि 24 आवर क्या है? अगर सर वो उसकी ऑर्बिटल स्पीड सिर्फ पूछा तो आप 360 पे डालते ना अगर वो सिर्फ पूछा कि ऑर्बिटल स्पीड हो और ये ना पूछा कि साल से शुरू करते हैं तो फिर होता है ना 360 पर, तो ये जगह 470 राउंड ऑफ करके, सही, meters per second. Explain why the speed around the axis of rotation of an object on the earth decreases as the distance of the object from the equator increases. बेटा अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा? v का फॉर्मूला होता है 2 पाई r अपॉन t। डिस्टेंस बढ़ने से r बढ़ जाएगा, r बढ़ेगा तो v भी स्पीड इंक्रीजेस। ठीक है। The earth moves around the sun because a force acts on the earth. State what provides this force. कौन सी force है ये? Gravitational force between sun and earth, and it is acting as a centripetal force. The orbit of the earth around the sun is an ellipse. Describe what happens to the magnitude of the force that acts on the earth as it moves in its elliptical orbit. Ellipse का मतलब क्या है? कहीं पर वो करीब आ रहा है और कहीं पर दूर जा रहा है। तो जब वो करीब आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगी, और जब वो दूर जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी। एलिप्स का मतलब है कि इसका रेडियस कांस्टेंट नहीं, ठीक है। As the separation is changing, ellipse है, बार बार सेपरेशन चेंज हो रही है, the gravitational force changes सेपरेशन कम होगी तो फोर्स बढ़ जाएगी। इसी तरह से जब सेपरेशन कम होगी, जब सेपरेशन बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है। Explain why the earth travels the slowest when it is at its furthest distance from the sun. वहां पर जितना ज्यादा ये दूर होगा उतना ज्यादा इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ जाए तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। As the separation increases, gravitational potential energy
increases and hence its kinetic energy decreases.